everybody, today I'm going to talk about BIMSTEC. As we know that recently the 6th BIMSTEC summit was held in Thailand, so BIMSTEC becomes important. I'm just going to talk about the basic foundation of BIMSTEC, why it is important for India, what are the challenges with BIMSTEC and how we can tackle it. If I talk about the formation of BIMSTEC, it was formed in 1997 after Bangkok Declaration was passed. Initially, it was called BISTEC, Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Economic Cooperation. So basically, it was formed for economic cooperation, but gradually, Myanmar, Nepal, and Bhutan got added into it, and today it comprises of 7 regional nations. If I talk about the objective of BIMSTEC, it is aligned with the principle of ensuring social and economic cooperation in the region and ensuring peace in and around the Bay of Bengal region. If I look at the priority areas, it works on 7 priorities area. So basically this BIMSTEC is comprising of 7 nations we know. So they have divided the priority areas into 7 parts, which is a very good thing about BIMSTEC. तो 7 लोग हैं, तो 7 लोगों को काम इन लोगों ने डिफाइन कर दिया है किसको क्या देखना है. फॉर एग्जाम्पल, trade and investment thing is to be looked upon by Bangladesh. People to people contact, Nepal देखेगा. Science and innovation, Sri Lanka. Then agriculture and food security, Myanmar. Security around the region will be looked upon by India. And connectivity by Thailand. So इस तरीके से इन लोगों ने priority areas को define कर दिया है. ठीक है, this is a very good thing about BIMSTEC. Now let us look at the importance of BIMSTEC. So BIMSTEC comprises of about 22% of the world population. ठीक है, तो it is very important. अभी BIMSTEC इंडिया के लिए क्यों important है? सबसे पहला तो we know that the presence of Pakistan in SAARC has made the working of this organization literally impossible. So this BIMSTEC provides an alternative to SAARC. Okay, तो BIMSTEC बहुत important हो जाता है. फिर रीजनल कनेक्टिविटी इंश्योर अगर करना है तो BIMSTEC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. वी नो दैट द इशू विद इंडिया इज़ कि चिकन कॉरिडोर जो हमारा चिकन नेक जो है वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है. अगर हमें वहाँ पे कनेक्टिविटी इंश्योर करना है तो हमें BIMSTEC के साथ रिलेशंस अच्छे रखने पड़ेंगे. देन इंडिया की बहुत सारी पॉलिसीज़ है उससे ये BIMSTEC अलाइन करता है. फॉर एग्जाम्पल सागर इनिशिएटिव, महासागर इनिशिएटिव, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसीज़, ये सारा अलाइन करता है BIMSTEC के साथ. उसके बाद फिर ये जो BIMSTEC है ये एक स्ट्रैटेजिक ब्रिज के तरह काम करता है बिटवीन एशियन एंड साउथ एशियन नेशंस. सो BIMSTEC बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद वी नो दैट इंडिया इज ऑलवेज वोकल अबाउट ग्लोबल साउथ. This BIMSTEC provides an opportunity for India to ensure connectivity with global South nations. If we want to become a leader, then we have to have cooperation with BIMSTEC nations. उसके बाद फिर इंडिया हमेशा बात करता है रिफॉर्म्स इन UNSC के बारे में. तो यहाँ पे BIMSTEC नेशंस हमेशा अपना वोटिंग प्रोवाइड करते हैं टू इंश्योर चेंजेस एंड रिफॉर्म्स इन द UNSCs एंड इवन सम अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF. तो ये BIMSTEC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर इंडिया का जो UPI ट्रांजेक्शन्स है वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं बहुत सारे BIMSTEC नेशंस. तो इस तरीके से भी BIMSTEC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए. फिर ट्रेड कनेक्टिविटी एंड कॉपरेशंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही इंडिया के लिए. उसके बाद क्या जो भी हमें कॉपरेशन इंश्योर करना है ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में या फिर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में, बे ऑफ बंगाल रीजन के अराउंड, फिर इंडियन ओशन रीजन के अराउंड अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए, बिकॉज वी नो दैट द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना इज इंक्रीजिंग इन द रीजन. इफ यू वांट टू टैकल चाइना देन BIMSTEC को अच्छा करना जो है इसके साथ रिलेशन वो सही हो जाता है. ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ये था इम्पॉर्टेंस ऑफ BIMSTEC. नाउ लेट अस लुक एट द चैलेंजेस विद BIMSTEC. चैलेंजेस भी है BIMSTEC के साथ. सबसे फोरमोस्ट चैलेंज BIMSTEC के साथ ये है कि ये एक बहुत ही स्लो ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत धीरे काम करता है ये. जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन 1997 में हुआ था, बट इसका चार्टर पास होने में 27 साल लग गया. तो हम देख सकते हैं कि इसकी फंक्शनिंग कितनी स्लो है और ये हैम्पर करता है प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट को. ठीक है, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. हमें पता है कि BIMSTEC की जितनी भी नेशंस है, ऑलमोस्ट नेशंस ऑफ BIMSTEC प्रॉब्लम है वहाँ पे. फॉर एग्जांपल श्रीलंका में क्राइसिस, म्यांमार में कूप, बांग्लादेश में मिलिट्री कूप. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है. फिर आपस में राइवलरी है इन नेशंस का. जैसे कि हम देख सकते हैं कि
नेपाल का इंडिया के साथ प्रॉब्लम है, बांग्लादेश का म्यांमार के साथ प्रॉब्लम है, तो आपस में नहीं बनती, ठीक है। फिर ट्रेड, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंश्योर करेंगे, जो इसका बेसिक मुद्दा है वही हम अच्छे से इंश्योर नहीं कर पाते हैं। हम आपस में कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, हम सेपा नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आई डोंट नो कि हम कर क्या रहे हैं बिम्स्टेक में। फिर तो ये ट्रेड अगर आप इंश्योर करना चाहते हो तो ये सब तो करना मतलब बेयर मिनिमम है, वो भी हम नहीं करते हैं इनके साथ, ठीक है। तो ज़रूरी है कि ट्रेड में रिफॉर्म्स लेकर आओ। उसके बाद हमने बहुत सारी इनिशिएटिव्स साथ में करा है, फॉर एग्जांपल इंडिया म्यांमार थाईलैंड हाईवे, बट वो डीले पे है। उसके बाद BBIN व्हीकल एग्रीमेंट है, वो भी डीले पे है। जितने भी एग्रीमेंट्स हमने आपस में साइन किया सब डीले पे है, तो बहुत ज़्यादा डीले है इसके अंदर। तो ज़रूरत क्या है फिर? उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, चाइना का इन्फ्लुएंस, जिसको हम टैकल करना चाहते हैं, उसका ही इन्फ्लुएंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। चाहे आप उसका प्रेजेंस बांग्लादेश में देख लो, चाहे आप उसका प्रेजेंस नेपाल में देख लो, चाहे उसका प्रेजेंस श्रीलंका में देख लो। हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे है 99 ईयर्स के लिए। तो दिस इज हाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग, आई डोंट नो। उसके बाद तो प्रॉब्लम्स तो बहुत है। खैर, अब हम कैसे प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं, हाउ वी कैन इंश्योर सम गुड आउटकम्स। तो सबसे पहले तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने का ज़रूरत है। सॉफ्ट पावर के थ्रू हम इसको इंश्योर कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। उसके बाद टॉक्स एंड डायलॉग्स इस्टेब्लिश करके, फ्रीक्वेंट मीटिंग्स कंडक्ट करा के। दिस इज हाउ वी कैन इंश्योर सम positive outcomes out of this organization, because this organization has potential but we are not able to reap that potential. ट्रेड अग्रीमेंट्स को अच्छा करना है तो कनेक्टिविटी को बूस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन इंश्योर some positive outcomes out of this organization. So this was all about BIMSTEC, and yeah, this is all.